Hello, my dear friends. I am Dr. Wasim I Khan, Associate Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So, in today's lecture, we will cover Section 22 of Bharatiya Nyaya Sanhita 2023, which dealt with the concept of unsoundness of mind. So, when the accused who has committed an offense is suffering from unsoundness of mind, what will be the liability of that person? Because section 22 comes under the chapter of general exception, it means if the person who is suffering from unsoundness of mind, if he has committed any offense, he will be exempted from the liability, he will not be liable for his act. तो सेक्शन 22 जिसमें अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का डिफेंस बताया हुआ है वो आज के लेक्चर में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करिएगा और इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करिएगा। तो चलिए सेक्शन 22 डिस्कस करते हैं हम भारतीय न्याय संहिता का। Section 22, the title of Section 22 is there, Act of a Person of Unsound of Mind. So if the person who is suffering from unsoundness of mind and if he does any act which is ordinarily is an offense, so what will be the liability of that person who is suffering from unsoundness of mind? तो unsound mind person है, अगर वो कोई एक्ट करता है या ऑफेंस करता है तो उसकी लाइबिलिटी क्या होगी? सेक्शन 22 यही कहता है। देखिए, नथिंग इज एन ऑफेंस, स्टार्ट ही हो रहा है सेक्शन, नथिंग इज एन ऑफेंस, वो ऑफेंस नहीं होगा। which is done by a person who at the time of doing it by reason of unsoundness of mind is incapable of knowing the nature of the act or that he is doing what is either wrong or contrary to law. So if any person while doing any act due to the reason of unsoundness of mind is unable or incapable of knowing the nature of his act as well as he is doing what is either wrong or contrary to law, he is unable to know that, then there will be no liability of that person. So person at the time of committing an offense, if suffering from unsoundness of mind, there will be no liability. Because due to the unsoundness of mind, he doesn't know the consequences of his act. He was incapable of knowing the nature of that act, and on the basis of that this exemption is provided to the person who is suffering from unsoundness of mind. तो सेक्शन 22 ये कहता है कि वो ऑफेंस होगा ही नहीं, कि अगर वो ऑफेंस ऐसा पर्सन करता है जो ऑफेंस करते वक्त अनसाउंड माइंड है, यानी उसको अनसाउंड माइंड, साउंड माइंड और अनसाउंड माइंड में डिफरेंस क्या है? साउंड माइंड कैन डिफरेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग. We are having a sound mind, we are sane person because we can differentiate between right and wrong. हम right and wrong, सही और गलत में फर्क कर सक रहे हैं, इसलिए हम sound mind है. And the person who is unsound mind can't differentiate between right and wrong. The person who is suffering from unsoundness of mind can't calculate his act and doesn't know the consequences of his act. तो जो पर्सन जो अनसाउंड माइंड होता है वो सही और गलत के बीच में फर्क नहीं कर सकता है, और वो जो कर रहा है उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, उसका नेचर क्या होगा, ये उसको पता नहीं होता है। पागल होने की वजह से, अनसाउंड माइंड होने की वजह से उसको ये पता नहीं है कि जो कर रहा है वो लॉ के अगेंस्ट में है या वो गलत है, इसीलिए एग्जम्पशन है। अगर फॉर एग्जांपल उसको पता होता कि ये लॉ के अगेंस्ट में है या ये गलत है तो वो रुक जाता, उसको पता नहीं है इसलिए उसने किया, इसलिए उसकी कोई लायबिलिटी नहीं होगी। तो एक बात ध्यान में रखिए, जब ऑफेंस कर रहा है तब वो अनसाउंड माइंड है तो एग्जम्पशन है। समटाइम्स द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम इंसैनिटी, तो क्या होता है कि पर्सन इंसेन है, लुनैटिक है। लुनेसी इट मींस द ड्यूरिंग इंटरवल देयर इज अ लूसिड इंटरवल. Sometimes the person is normal and sometimes the person is lunatic. So when he is lunatic, if he has committed any offense, he will be exempted from the liability. But when he is normal, if he has committed any offense, he will be liable for that offense. तो lunacy में क्या होता है कि कुछ टाइम पे पर्सन नॉर्मल रहता है और कुछ टाइम पे पर्सन अनसाउंड माइंड होता है। तो जब अनसाउंड माइंड है तब ऑफेंस करेगा तो लायबिलिटी नहीं है, जब नॉर्मल है ऑफेंस करेगा लायबिलिटी है। तो लीगल इंसैनिटी इज अ डिफेंस, मेडिकल इंसैनिटी इज नॉट अ डिफेंस। तो मेडिकल इंसैनिटी में क्या होता है कि पर्सन इंसेन तो डिक्लेयर किया हुआ है लेकिन कभी कभी वो नॉर्मल होता है, तो जब नॉर्मल है तो वो लीगल इंसैनिटी नहीं है। नॉर्मल पोजीशन में अगर ऑफेंस करेगा तो ही विल बी लायबल फॉर दैट, वो ऑफेंस के लिए लायबल रहेगा। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन
एम नॉटन रूल इनैक्टेड इन इंग्लैंड, एम नॉटन पे बेस्ड है, एम नॉटन का रूल ऑफ इंसैनिटी है, उसी से डेवलप होके ये सेक्शन आया है। देखिए इंग्रेडिएंट्स क्या है सेक्शन 22 के, कब एग्जम्पशन मिलेगा अक्यूज्ड को, इंसैनिटी मस्ट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ एन ऑफेंस। सो when the person commit an offense at that particular time, if he was insane, then only he could take the benefit of this section, otherwise not. This section provide a protection to those offender who at the time of commission of offense was suffering from insanity. तो जब वो ऑफेंस कर रहा है उस टाइम पे अगर वो पागल था तभी उसको डिफेंस मिलेगा, तभी उसको प्रोटेक्शन मिलेगा सेक्शन 22 का, अदरवाइज नॉट। बाय रीजन ऑफ इंसैनिटी ही इज इनकैपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ हिज एक्ट। Because of insanity, because of unsoundness of mind, he was incapable of knowing the nature of his act. जो पागलपन था वो इतना होना चाहिए कि वो जो कर रहा है उसका नेचर उसे पता नहीं होना चाहिए। ये वो इंसैनिटी उसके एक्ट के नेचर को समझने से अगर उसको रोक रही है तभी डिफेंस होगा, अदरवाइज द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम इंसैनिटी, बट वो जो कर रहा है उसको पता है वो क्या कर रहा है, तो डिफेंस नहीं मिलेगा, प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा सेक्शन 22 को। इंसैनिटी कितनी होना चाहिए, इंसैनिटी की इंटेंसिटी कितनी होना चाहिए कि इंसैनिटी इस लेवल तक की होना चाहिए कि उसकी इंसैनिटी उसको एक्ट के नेचर को समझने से रोक रही है, तब डिफेंस होगा, अदरवाइज नॉट। थर्ड वन इज इवन इफ ही न्यू द नेचर ऑफ द एक्ट he did not know that it was wrong or against the law. Sometimes the person who is suffering from insanity knows the nature of act, but he did not know that it was a wrong or against the law. कभी कभी पर्सन को वो जो कर रहा है वो समझ में आता है, नेचर तो समझ में आता है मैं क्या कर रहा हूं, बट उसको अगर ये समझ में नहीं आ रहा है कि लॉ के अगेंस्ट में है या ये रॉन्ग है, तब भी उसको प्रोटेक्शन मिलेगा। अगर कोई पर्सन की इंसैनिटी है लेकिन उसको नेचर ऑफ एक्ट भी समझ में आ रहा है और उसको यह भी समझ में आ रहा है कि मैं जो कर रहा हूं वो रॉन्ग है या लॉ के अगेंस्ट में है, तो प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। तो बात ध्यान में रखिए, ऑफेंस करते वक्त वो इंसेन होना चाहिए। दूसरा ये कि इंसैनिटी इस लेवल की होना चाहिए कि वो इंसैनिटी उसको नेचर ऑफ एक्ट समझने से रोक रही है, या नेचर ऑफ एक्ट समझ में आ रहा है लेकिन उसको यह समझ में नहीं आ रहा है कि जो कर रहा है वो रॉन्ग है और अगेंस्ट लॉ है। अगर ये तीनों इंग्रेडिएंट्स फुलफिल हो रहे हैं तो डेफिनेटली सेक्शन 22 का अक्यूज को प्रोटेक्शन मिलेगा, अदरवाइज नॉट। अरे एक आधा पर्सन है फॉर एग्जांपल, पागल है, पागल ने ऑफेंस किया, जान से मार दिया किसी को, कोई लायबिलिटी नहीं है क्योंकि वो इंसैनिटी से सफर हो रहा है। So sometimes by taking the defense of insanity, person can avoid his liability. So section 22 में insanity का डिफेंस हमने डिस्कस किया कि insane person is having no liability. बट एक बात ध्यान में रखना चाहिए, ऑफेंस करते वक्त वो insane होना जरूरी है। ऑफेंस किया नॉर्मल पोजीशन में और बाद में पागल हो गया, लायबिलिटी रहेगी उसकी, वो सेक्शन 22 का प्रोटेक्शन उसको नहीं मिलेगा। तो यही था सेक्शन 22 जो हमने डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।